ہماری ٹیم میں کافی ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کافی ایسے لوگ ہیں جن کا کام ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان تمام لوگوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھا کام چل رہا ہے. اور چل کیوں رہا ہے اچھا کام ان کا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کام کیا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جانتے ہیں کہ کسی پرسن کی اگر آئی ڈی بنوانی ہے تو میں نے آئی ڈی کیسے بنانی ہے. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں کسی کے پاس بھی جب کوئی جوائننگ آتی ہے تو وہ اوپر سینئر کو میسج کرتے ہیں کہ سر میرے پاس ایک بندہ ہے، وہ مجھے جوائن کرنا چاہ رہا ہے، میں کروں کیا؟ اب ایک ممبر کو جب یہ نہیں پتا کہ اس کو ایک بندہ جوائن کرنے والا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ایک اچھی ٹیم بنا سکتا ہے. کیونکہ ہم اس وجہ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ سیکھا کریں، سمجھا کریں. کیونکہ کوئی بھی ممبر آپ کے پاس آ جائے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے اپنا لنک کاپی کر کے اس بندے کو بھیجنا ہے. جب تک میں اس کو لنک کاپی کر کے نہیں بھیجوں گا اس کی آئی ڈی کیسے بنے گی؟ اب سینئر سے آپ پوچھتے ہیں کہ بندہ آیا میرے پاس، میں نے اس کو کیسے جوائن کروانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سینئر نے بھی آپ کو یہی بتانا ہے کہ بھئی اپنا لنک کاپی کر کے اس بندے کو بھیجیں، اس کی آئی ڈی بنوائیں، پھر اس کی KYC کروائیں، پھر اس کا پیکج بائی کروائیں. ٹھیک ہے، پیکج کیسے بائی کروایا جاتا ہے اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. KYC کیسے ہوتی ہے اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب یہ چیزیں جو بیسک چیزیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی، اور پھر آپ جناب شکایت آتی ہے کہ بھئی ہماری ٹیم نہیں بن رہی، مجھے 1 مہینہ ہو گیا میں کام کر رہا ہوں، میری کوئی سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے رسپانس نہیں آ رہا لوگوں کا. تو یہ ایسے تو نہیں چلے گا نا. جب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ایک چیز کے قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ایک ممبر میرے پاس آ جاتا ہے تو میں نے اس کو کیسے جوائن کروانا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کر دی. یہ جب چیز نہیں پتہ ہوگی تو ظاہر بات ہے وہ بندہ آپ کو منع ہی کرے گا. وہ کہے گا کہ بھئی میں کیوں جوائن کروں؟ اس بندے کو خود کچھ نہیں پتہ ہے، میں اس کو جوائن کرتا ہوں، پتہ نہیں یہ پھر بعد میں مجھے سمجھاتا ہے یا نہیں سمجھاتا، ٹھیک ہے، جو ہے نا مصیبت بن جائے گا. میں تو اس کے اوپر مصیبت نہیں بنوں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ میرا سینئر ہی جو مجھے جوائن کروا رہے وہی میرے اوپر مصیبت بن جائے. تو اس لیے مہربانی فرما کر سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ سیکھا کریں، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے، میں نے اس کو سمجھایا سکھایا، ٹھیک ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، اس کی آئی ڈی بنوانی ہے، آئی ڈی کے بعد KYC پیکج، پھر آہستہ آہستہ یہ سارے اسٹیپ جو ہیں میں نے کروانے ہیں. اور یہ اسٹیپ سارے کیسے کیے جاتے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب تک یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی تو آپ کو جو ہے نا لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. جب آپ کو ساری چیزیں پتہ ہوں گی، آپ کو کمپنی کے بارے میں ایک ایک چیز پتہ ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا، ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی. تو میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہماری کمپنی کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اس کمپنی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیکیجز کی کیا لمٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کس پیکیج کے اندر کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں بیسک چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہمارے کون سے رینک ریوارڈ ہیں، ٹھیک ہے، کس رینک کے اندر کون سی جو ہے نا اچیومنٹ دی جاتی ہے اور رینک کیسے اچیو کیے جاتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہر بندے کو پتہ ہونے چاہیے، چاہے وہ آج جوائن ہوا ہے یا اس کو 2-3 مہینے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. جو بندہ آج جوائن ہوا وہ سمجھدار بندہ ہوگا، وہ ان چیزوں کو سیکھے گا. اور جو اس کو 1-2 مہینے ہو چکے ہیں اس کو چاہیے کہ یہ چیزیں سیکھے پہلے، پھر کام سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. پھر جب آپ کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کو رزلٹ بھی ملیں گے. پھر آپ جب کام سٹارٹ کریں گے، مارکیٹ میں اتریں گے، لوگ جو بھی آپ کو سوال کریں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، آپ ان کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. بیسک چیز جو ہے نا آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. جب آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں ایک ایک چیز، اپنی ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، کوئی بندہ آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ یار میں نے کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیسے آگے اس کو ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور سیکنڈ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو لوگ جب کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس بندہ ہے تو ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ان کا اکاؤنٹ بنوائیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اکاؤنٹ بنوانا کیسے ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی سر بتائیں اب اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. ایک بندے کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. بھائی ایسے تو آپ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. تو سب سے ضروری چیز کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ سیشن دیکھیں زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے اس چیز کے بارے میں. ہماری جو ویب سائٹ ہے زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ کیسے ہم نے ویب سائٹ کو جو ہے نا یوز میں لانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن چند ایک لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ سیشن کنڈکٹ کیا گیا ہے. اور باقی جن کو پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ ریکور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ان کو بھی یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی، ان کو بھی پتہ ہو چل جائیں گے. تو ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. اسکرین شیئر کر کے انشاءاللہ میں آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں ایک ایک چیز مکمل طور پر کلیئر کرنے لگا ہوں. بس آپ لوگوں کا جو مکمل دھیان ہے وہ میری اسکرین پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو مجھے آپ لوگ بتا دیں کہ میری اسکرین آپ لوگوں کو شیئر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اسکرین. اوکے ہو گیا. تو سب
सबसे पहले आप लोगों ने पता करना क्या, आप लोगों ने अपना जो ब्राउजर होता है, ठीक है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, आपका क्रोम ब्राउजर हो सकता है, आपका यूसी ब्राउजर हो सकता है, ठीक है, आपका सिर्फ ब्राउजर हो सकता है। तो जो भी ब्राउजर आपके पास हो, आपने करना क्या, उसको ओपन कर लेना है। तो मेरे पास क्रोम ब्राउजर आया था, ठीक है, तो मैंने इसको ओपन किया। ये वेबसाइट मेरे पास ओपन है, लेकिन मैं शुरू से आपको बताऊंगा, ठीक है, स्टार्ट से आप लोगों को एक एक चीज जो है ना क्लियर करने लगा हूं, ताकि आप लोगों को हर एक चीज के बारे में पता हो जाएगा। लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हम अपना अकाउंट कैसे ओपन करें, ठीक है, वो बार बार अपने लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं। नहीं, लिंक से नहीं, आप डायरेक्टली गूगल से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक ना भी हो तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने अब लिखना क्या, इधर सिंपल आपने लिखना है इकोनॉक्स लॉगिन, ठीक है। हमारी डिस्कवर की वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगी। ये देखें, साइन इन इकोनॉक्स डिस्कवर पहले नंबर पे आ गया। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी मुकम्मल। तो ये मुकम्मल वेबसाइट है हमारी, ठीक है। इसके बारे में ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, ऊपर 3 लाइनें हैं, ठीक है। ये अब जो ऊपर आपको शो हो रहा है ना नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर कंपनी का लैंडलाइन नंबर है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की भी, आप कंपनी को डायरेक्टली कॉल करके उनसे अपनी प्रॉब्लम जो है सोल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा नंबर के साथ ही आपको ईमेल शो हो रही है, ठीक है। इस ईमेल का क्या मकसद होता है, इस ईमेल मिसाल तो कंपनी को आपने कॉल किया, आपकी कॉल पिक नहीं हो रही, तो आप कंपनी को मेल कर सकते हैं, ठीक है। आप कंपनी को मेल करेंगे तो कंपनी आपको आपकी मेल देगी, आपके साथ जो है ना रब्ता करेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सोल्व करेगी। उसके बाद ये 3 लाइनें बनी आती हैं, ठीक है। इसमें होम आ जाता है पहले नंबर पे, ठीक है। इस होम पर आपको ये तमाम चीजें जो है ना वेबसाइट का जो अबाउट अस है, ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। अब ये जो वीडियो आपको शो हो रही है ना यहाँ पर, इसमें एक वीडियो है, ठीक है। उस वीडियो में ये बताया गया कि कंपनी के बारे में जो है ना मुकम्मल नॉलेज दी गई है, कंपनी की मुकम्मल प्रेजेंटेशन इधर दी गई है। किसी भी मेंबर के साथ अगर तो सिर्फ आप वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं कि भाई वेबसाइट का लिंक है, आप इस वेबसाइट को मुकम्मल देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक वीडियो भी मिलेगी और आपको सारा कुछ जो है ना वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज आप समझेंगे, आपके समझाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आपने लिंक वेबसाइट का दिया और अगला बंदा खुद ब खुद अगर तो समझदार होगा तो वो सारी कंपनी को जो है ना मतलब परख लेगा कि भाई इस कंपनी में है क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। और ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन अप कैसे किए जाते हैं, लीडरशिप में कंपनी के ओनर, ठीक है, फिर जनरल मैनेजर आ जाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है। ये सारे लोग जो है यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, ठीक है, मैडम आसफा सत्ती एंड सर फैसल बलोच साहब, तो ये दोनों फिलहाल हैं टॉप रैंक पर, ठीक है। तो ये इब्राहिम खिलजी साहब, ये हैं कोई अंग्रेज, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अबाउट आपको मैंने बता दिया मार्केटिंग टूल में मार्केटिंग करने की जो चंद एक बातें होती हैं, ठीक है, जो टिप्स होती हैं छोटी छोटी, वो आपको तमाम चीजें जो है ना इधर इंग्लिश में लिखी हुई नजर आएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। किसी भी पर्सन के साथ जब आप ये शेयर करेंगे लिंक, तो वो तमाम चीजें ये रीड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको तमाम कंपनी के बारे में जो है ना नॉलेज हो सकती है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास ये इसको शोर ने ब्लॉग आ जाता है, ठीक है। ब्लॉग में जो हमारे ये लोग आ जाते हैं, ठीक है, कंपनी के ओनर और ये बंदा, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। इनकी तफसील थोड़ी बहुत, कॉन्टैक्ट में ये ईमेल एड्रेस आ गया कंपनी का, ठीक है, कंपनी का ऑफिस एड्रेस आ गया। बाज़ लोग मैसेज करते होते हैं कि सर ऑफिस का एड्रेस बता दें, तो ऑफिस का एड्रेस आपको वेबसाइट से भी मिल सकता है। ये देख लें, आपके सामने जो है ना ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फोन नंबर कंपनी का, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वो फोन नंबर लिखा आ रहा है, ठीक है, और साथ मेल लिखी आ रही थी, तो मेल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाती हैं। इसके अलावा अब आ जाता है इधर अकाउंट, ठीक है। इसमें आ रहा है अब साइन इन और साइन अप का। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमने करना है साइन इन, ठीक है। साइन इन हमने किया, साइन इन करते वक्त आपने अपना यूजर नेम डालना है, अपना जो है ना ये यूजर नेम मैंने ऊपर डाल दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपने कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। ये कैप्चा कोड जैसे ही आप डालेंगे तो आपकी आईडी सिंपल जो है ना, फिर उसके बाद आपने लॉगिन अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अकाउंट है ये इनवैलिड कैप्चा, ठीक है, गलती से जो है ना मुझसे कैप्चा इनवैलिड लिखा गया, गलत लिखा गया, ठीक है। तो ये 423 और 498, तो ये सेम इस तरीके से आपने कोड डाला और लॉगिन अकाउंट पर किया तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ये चेक कर सकते हैं आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो आता है ना ऊपर से ये सबसे सामने फ्लैश होकर ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस ये चेंज होता है, ठीक है। इसमें कंपनी ने कोई भी पैगाम देना हो अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो वो कंपनी जो है ना इधर अपने नोटिस अपडेट करती है और ये हर बंदे को शो होता है, ठीक है। जैसे कोई बंदा अपनी आईडी ओपन करता है तो सबसे पहले उसको ये नोटिस शो होता है। इसमें कंपनी इन्हें जो अहम पैगाम पहुंचाना होता है फौरी तौर पर लोगों तक, ठीक है, वो इसके थ्रू जो है ना पहुंचा देती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले जो हमारा डैशबोर्ड आता है, ठीक है, ये मेन्यू पर आपने क्लिक किया, अब ये आ रहा है डैशबोर्ड, ठीक है। अब जो हमारा डैशबोर्ड है ना, ये जो होम स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ, तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ई वॉलेट, ठीक है, जो ग्रीन डब्बा आपको शो हो रहा होगा, ग्रीन बॉक्स, इसमें लिखा हुआ है ई वॉलेट। ई वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ठीक है। इस वॉलेट के अंदर जो है ना आप तमाम लोगों की अर्निंग आपको ऐड होती रहती है, सही है। और इस वॉलेट का जो विड्रॉ होता है
वो मिनिमम 13 END पर यानी कि 1300 पर आप इस ई वॉलेट का विड्रा लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे एस वॉलेट होता है, जो भी आप कमाते हैं ना, सही है, उसका 80% आपके ई वॉलेट में और 20% आपके एस वॉलेट पे। एस वॉलेट मतलब सेविंग वॉलेट, ठीक है। सेविंग वॉलेट के अंदर आपकी अमाउंट सेव होती रहती है, और ये जब अमाउंट आपकी 13,000 को पहुंचती है, ठीक है, यानी कि 130 END हो जाते हैं, तो आप उनका विड्रा अपने जो है ना बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। और ई वॉलेट का विड्रा सिर्फ आप 1300 पर अपने इजी पैसा और बैंक अकाउंट के अंदर विड्रा ले सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है टोटल अर्निंग, ठीक है। पहले ई वॉलेट, फिर एस वॉलेट और फिर टोटल अर्निंग, यानी कि आज तक जो आपने कमाया है इकोनॉमिक्स से, ठीक है, वो आपको यहाँ तक शो हो रहा होता है, ठीक है। जो मेरा यहाँ तक 1,31,656 रुपए मेरी आज तक की जो टोटल अर्निंग है सिर्फ इस अकाउंट के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये मेरा मेन अकाउंट है, बाकी भी मेरे काफी अकाउंट है जो कि आप लोगों ने देखे होंगे, मैं लॉगिन जब करते लगा था, ठीक है। अब ये फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास बॉक्स आ गया इको पॉइंट, और नीचे आ गया रजिस्टर पॉइंट, ठीक है। इको पॉइंट से मुराद ये होता है कि ये ईपी होते हैं, ठीक है, और ये ईपी हमेशा आते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये इको पॉइंट कोई भी पर्सन या कोई भी मिनी स्टॉकिस्ट अपनी तरफ से कभी भी नहीं लगा सकता। ये इको पॉइंट हमेशा कंपनी की तरफ से जनरेट होके आते हैं, और ये इको पॉइंट और आरपी जो है ना, ये ज्वाइनिंग के टाइम पर यूज होते हैं, ठीक है। जब आप पेमेंट करते हैं अपने सीनियर को, सही है, 3,000 रुपये पेमेंट आपने किया, आपने स्क्रीनशॉट भेजा, आपने यूजर नेम भेजा, यूजर नेम के ऊपर यही पॉइंट्स आते हैं कंपनी की तरफ से, और फिर आगे क्या करते हैं, आप उनका पैकेज परचेज करवाते हो। तो इको पॉइंट और रजिस्टर पॉइंट, ठीक है, ये 2 पॉइंट होते हैं। इसके अलावा आपका नीचे ये रैंक शो हो रहा हो, तो जो भी आपका रैंक होगा वो आपको यहाँ पर शो होता है कि भाई इस टाइम पर आप ब्राउन्ज मेंबर हैं, या आप सिल्वर मेंबर हैं, या आप गोल्ड मेंबर हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको शो होती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर मेरा प्लैटिनियम शो हो जाएगा। इसके नीचे रैंक के नीचे ही आप लोगों को कूपन कैश शो हो रहा होगा। अब ये कूपन कैश क्या होता है? कूपन कैश आप लोगों को पता है कि ये हमारी एक कैशबैक पॉलिसी है, ठीक है। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने कूपन कैश दिया होता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स जब आप परचेज करते हैं, अपनी आईडी से जब ऑर्डर लगाते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक कंपनी जो है ना एक अच्छा डिस्काउंट दे रही होती है। कैसे देती है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कूपन कैश के बारे में आप लोगों को। देखें, हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मिसाल के तौर पर एक स्मार्ट वॉच लगी हुई है, ठीक है, और स्मार्ट वॉच की जो प्राइस है वो 2000 है, ठीक है। स्मार्ट वॉच की प्राइस 2000 है, और उसके ऊपर कंपनी आपको 20% कमीशन दे रही है। अब उस स्मार्ट वॉच जब आप अपने लिए परचेज करेंगे, आपने 2000 रुपये पे किया, ठीक है, 2000 रुपये की वॉच ली, उसमें से 400 रुपये जो है वो कंपनी आपके अकाउंट में आपको रिटर्न कर देती है, ठीक है, और वो वॉच भी आपके पास आ गई, और 400 रुपये की आपको बचत भी होगी। अगर वही वॉच आप अपने लिए नहीं, अपने किसी फ्रेंड के लिए लेते हैं, ठीक है, आपने फ्रेंड को दिखाई, फ्रेंड ने कहा यार वाकई में वॉच बड़ी कमाल की है, सर मुझे ये ऑर्डर करके दो, आपने ऑर्डर किया, आपके फ्रेंड को वॉच मिली, आपके फ्रेंड ने 2000 रुपये दिया, आपने वही 2000 रुपये कंपनी को दिया, वहां से कंपनी 1600 रुपया कंपनी ने अपने पास रखा, और 400 रुपये कंपनी आपके अकाउंट में आपको दे देती है। यानी कि इस तरीके से आप सेल्स करके जो है ना हमारे ऑनलाइन स्टोर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सेल्स करके वहां से अर्निंग जो है ना कर सकते हैं, ठीक है, इस कूपन कैश के थ्रू। तो इस टाइम पर जो मेरे अकाउंट में कूपन कैश पड़ा है वो तकरीबन 645, यानी कि एक कूपन कैश हमारा बराबर होता है 100 के। तो ये 645 को जब आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको शो हो जाएगा ये तकरीबन 64,547 रुपए का कूपन कैश मेरे अकाउंट में इस टाइम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं फ्यूचर पॉइंट। अब फ्यूचर पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ये जो फ्यूचर पॉइंट है ना, आप कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है इसका, तो फ्यूचर पॉइंट का बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट ये है कि मिसाल के तौर पर फ्यूचर पॉइंट, पहले मैं आपको इसके तकरीबन 2 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। पहला बेनिफिट इसका ये होता है कि आपको जो एक फ्यूचर पॉइंट है ना, एक फ्यूचर पॉइंट, आप एक फ्यूचर पॉइंट से 1000 रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। अभी मेरे पास 46 पॉइंट्स पर हैं, तो यानी कि मैं 46,000 रुपए की अर्निंग इन फ्यूचर पॉइंट्स के थ्रू कर सकता हूँ। कैसे किया जा सकता है? हमारा जो एक फ्यूचर पॉइंट होता है, ठीक है, वो 500 रुपए का होता है, सही। एक फ्यूचर पॉइंट 500 रुपए का होता है, और यही एक फ्यूचर पॉइंट का जो अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं सीसी में, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है कि कन्वर्ट टू आरपी। अगर इसी ये कन्वर्ट एफपी लिखा हुआ है, ठीक है, एफपी से मुराद ये होता है, एफपी नहीं है असल में, मिस्टेक हुई होगी यहाँ पर इनसे, ठीक है, ये कुछ और लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये सीसी यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। तो मैं अब आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो फ्यूचर पॉइंट होता है ना, एक फ्यूचर पॉइंट हमारा 1000 के बराबर होता है, और एक फ्यूचर पॉइंट की जो प्राइस होती है 500 रुपये, यानी कि एक फ्यूचर पॉइंट से आप 1000 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक फ्यूचर पॉइंट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 कूपन कैश के बराबर बन जाएगा, ठीक है। एक फ्यूचर पॉइंट से आपको 1000 कूपन कैश मिल सकता है, और वो जब 1000 कूपन कैश आपको मिल जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस कूपन कैश को जो है ना ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके वहां से जो है ना आप अर्निंग कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक कूपन कैश जो है ना हमारा 100 के बराबर होता है, ठीक है, और एक फ्यूचर पॉइंट हमारा 1000 के बराबर होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर एक वॉच के ऊपर 20% कमीशन है, उसकी प्राइस 2000 रुपये, तो आपको 400 रुपये कमीशन मिलता है, ठीक है। 2000 का 20% 400 मिलता है। तो इसी तरीके से अगर वही वॉच आपके पास फ्यूचर पॉइंट मिसाल के तौर पर आपके पास कूपन कैश खत्म हो जाता है, 3000 वाले पैकेज में आपको 9000 कूपन कैश दिया जाता है, 7000 वाले पैकेज में आपको जो है ना 25000 रुपये का कूपन कैश दिया जाता है, और जो 12000 वाला पैकेज होता है इसके अंदर आपको
ये तकरीबन जो है ना 45,000 का कूपन कैश दिया जाता है, और जो 17,000 का पैकेज है, इस पैकेज के अंदर आप लोगों को 57,000 का कूपन कैश दिया जाता है, और 12,000 वाले पैकेज में आपको 40,000 कूपन कैश दिया जाता है, ठीक है। 47 नहीं बल्कि 40,000 आप लोगों को कूपन कैश दिया जाता है 12,000 वाले पैकेज में। अब ज्यादा लोगों का पैकेज 3,000 वाले होता है, उनके जो है ना इधर कूपन कैश लिखा होगा 90, ठीक है। मेरा इधर तकरीबन 645 लिखा हुआ था, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जो है ना यहाँ पर शो करवाया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 645, यहाँ पर कुछ लोगों का 90 लिखा होता है, यानी कि 90 लिखा होता है। 90 से मुराद 9,000 होता है, ठीक है। यानी कि 9,000 रुपए तक की आप अर्निंग कर सकते हैं इनके ऑनलाइन स्टोर से। अगर तो आपके पास एक कूपन कैश एंड हो जाता है, तो इस फीचर पॉइंट, एक फीचर पॉइंट जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो एक फीचर पॉइंट जब आपने कन्वर्ट किया सीसी में, तो ये 1,000 के बराबर बन जाते हैं। यानी कि आपके पास 1,000 का कूपन कैश आ जाएगा। उस कूपन कैश को दोबारा आप ऑनलाइन स्टोर पर यूज करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। कैसे की जाती है ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। इसके अलावा नीचे जो हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है, इसमें लिखा हुआ है 3.5 END टोटल डिपॉजिट, यानी कि आज तक मैंने 3.5 END यानी कि 350 रुपए डिपॉजिट किया, और वो 350 रुपए मैंने इस वजह से डिपॉजिट किया था कि मैंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवानी थी। प्रोडक्ट ऑर्डर लगाने के लिए मैंने 350 रुपए डिपॉजिट किया था, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं 17,000 पैकेज के, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर पे किए थे, तो ये आपको मुझे जो है शो हो रहा है। इसके अलावा टोटल विड्रा 130 END का मैंने विड्रा लिया था एक बार एस वॉलेट का, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाता है कंप्लीट विड्रा, जो एस वॉलेट का जो मैंने विड्रा लिया था वो मेरा कंप्लीट हुआ था, तो ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि अभी आप देख सकते हैं कि आपका ये जो विड्रा है ये कंप्लीट हुआ है। बैंक में लिया था मैंने, ठीक है। ये ऊपर आप लोग शो हो रही है डियर यूजर योर विड्रा हैज बीन अप्रूव्ड बाय, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 22 फरवरी को मैंने ये ऑर्डर लगाया था। इसके अलावा पेंडिंग विड्रा, आप कोई विड्रा लगाते हैं, ठीक है, और आपको पता है 3 से 5 दिन प्रोसेसिंग डेज होते हैं विड्रा के, तो अगर आप कोई विड्रा लगाते हैं तो वो जब तक पेंडिंग में पड़ा रहोगे आपको यहाँ पे शो होता रहेगा कि भाई आपका जो विड्रा है वो पेंडिंग पे है, ठीक है। अभी मेरा कोई विड्रा पेंडिंग पे नहीं है। इसके अलावा रिजेक्ट विड्रा, आप जब विड्रा लगाते हैं आपकी अकाउंट डिटेल्स में कोई मसला होता है, तो फिर उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो विड्रा होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, आपकी जो अमाउंट होती है वो दोबारा ई वॉलेट में रिटर्न हो जाती है, ई वॉलेट में आपकी अमाउंट पड़ी होती है। ये तब होता है जब आप विड्रा लगाते हैं और आपके जो इजी पैसा अकाउंट है या तो उसकी लिमिट एक्सीड कर चुकी हो, ठीक है, या फिर कोई और मसला हो या अकाउंट में पेमेंट सेंड ना हो रही हो, तो आपका विड्रा रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये डेज होते हैं, ठीक है, ये भी चला आने वाले टाइम में आप समझ जाएंगे। इसके अलावा टोटल फर्स्ट कमीशन आपको शो हो रहा होगा। फर्स्ट कमीशन से मुराद डायरेक्ट कमीशन, ठीक है। आप किसी भी मेंबर को जब आप स्पॉन्सर करते हैं तो उसका जो डायरेक्ट कमीशन आपको मिलता है 700 रुपया, ठीक है। 3,000 वाले पैकेज में, 12,000 वाले पैकेज में आपको 2,100 मिलता है, 17,000 वाले पैकेज में आपको 2,250 मिलता है, तो वो फर्स्ट कमीशन होता है, यानी कि वो डायरेक्ट कमीशन होता है, वो आपको यहाँ पर शो होता है। तो मेरा आज तक जो फर्स्ट कमीशन है वो तकरीबन है जनाब 18, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 18,630 रुपए, ठीक है। 18,630 रुपए है मैंने आज तक डायरेक्ट अर्निंग की है। उसके अलावा इनडायरेक्ट अर्निंग की अगर बात की जाए, जो टीम वर्क से आप लोग अर्निंग करते होते हैं, क्योंकि टीम का बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। आप डायरेक्ट कमीशन के पीछे भागते हैं, डायरेक्ट कमीशन के पीछे ना भागे, आप इनडायरेक्ट कमीशन के पीछे भागें, ठीक है। इनडायरेक्ट कमीशन है क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप इनडायरेक्ट कमीशन देख सकते हैं कि मैंने जो इनडायरेक्ट कमीशन कमाया वो तकरीबन 1,11,573 रुपए, जो कि आपको टोटल बोनस 2 कमीशन वाले बॉक्स में शो हो रहा होगा। इसके अलावा नीचे टोटल रेफरल, ठीक है, यानी कि आज तक मैंने तकरीबन अपने इस अकाउंट के अंदर 80 लोगों को जो है ना लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है। लिंक तो बहुत लोगों को प्रोवाइड किया, लेकिन 80 लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर भी किया है, ठीक है। 80 लोगों ने अपनी जो है आईडी बनाई है। इसके अलावा लास्ट पे CBV, ठीक है, कन्वर्टेड बिजनेस वाली में आपको लिखा हुआ शो हो रहा होगा, जिसमें जो है ना 6,325 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कन्वर्टेड बिजनेस वाली होता है, ठीक है। इस बिजनेस वाली से आप क्या करते हैं, अपना रैंक अचीव करते हैं। जब 460 पॉइंट होते हैं तो आपका रैंक ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। जब आपके 920 पॉइंट होते हैं तो आपका रैंक सिल्वर होता है। इसी तरीके से जब 2300 पॉइंट होते हैं आपका रैंक गोल्ड होता है। जब आपके यही पॉइंट 6900 यानी कि 6,900 होते हैं तो आपका रैंक प्लैटिनम हो जाता है, और बहुत जल्द मेरे ये पॉइंट 6,900 हो जाएंगे। सिर्फ 600 पॉइंट्स की कमी है, ठीक है, तो मेरे ये पॉइंट हो जाएंगे 6,900। अब ये पूरा जो डैशबोर्ड था इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर मेन्यू में आप जाएंगे, अब आता है सेकंड नंबर पे हमारे पास बीवी लॉग। बीवी लॉग में क्या आपको ये देखिए, बीवी लॉग में आपको ये तमाम चीजें शो हो रही हैं, सही है। आपकी टोटल बिजनेस वाली हम 2806, लेफ्ट साइड पे बिजनेस वाली हम 0 है मेरा, राइट साइड पे मेरे पास 2806 बिजनेस वाली है, ठीक है। अब जो कन्वर्टेड बिजनेस वाली में 6,325 रुपए मेरा जो है ना, मेरा कन्वर्टेड बिजनेस वाली में, जिसके थ्रू जो आप पॉइंट्स अपने कंप्लीट होते हैं तो आप रैंक अचीव करते होते हैं। तो आप ये देखें, आपकी टीम में कोई भी ज्वाइनिंग हो ना, चाहे वो आपके साथ हो या आपकी टीम में हो, तो आप वो देख सकते हैं कि आप ज्वाइनिंग वो राइट साइड पर हुई है या लेफ्ट साइड पर हुई है, ठीक है। और उनका यूजर नेम आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 29 मई को ज्वाइनिंग हुई, ठीक है, ये भी 28 मई को हुई, तो ये भी 28 को, ठीक है। ये इनके यूजर नेम लिखे हुए किस साइड पर ज्वाइन हुए हैं, राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को राइट लेफ्ट ये इस तरीके से शो होता है, ठीक है। बीवी लॉग में आपको शो होता है कि आज की डेट में आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग हुई है। इसके अलावा माय रेफरल,
किसी भी बंदे के साथ अगर ज्वाइनिंग होती है ना, ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले अकाउंट ओपन करेगा, उसका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड तो वो मेन्यू में जाएगा, मेन्यू में जाने के बाद वो क्या करेगा, एक तीसरे नंबर पे ऑप्शन आता है माई रेफरल का, ठीक है, किसी के साथ भी ज्वाइनिंग होती है तो वो माई रेफरल में जाके अपने इन दोनों लिंक में से कोई भी एक लिंक कॉपी करेगा और अगले बंदे को दे देगा, और अगला बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकता है, ठीक है। तो लिंक आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सही, माई रेफरल में जाके आप अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं। अब लिंक कॉपी किया आपने, एक बंदे को भेजा आपने लिंक, ठीक है, वो बंदा कहता है कि भाई जान मैंने अपनी आईडी बना ली है, ठीक है। अब वाकई में उस बंदे ने आईडी बनाई है या नहीं बनाई, ये कंफर्म करने के लिए आप वापस अपना अकाउंट ओपन करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, माई रेफरल में जाएंगे, ठीक है। जब आप माई रेफरल में जाएंगे तो आपको ये जगह शो होगी और आपको यहाँ पर शो होगा कि किस बंदे ने आईडी बनाई आपके रेफरल लिंक के थ्रू। जिस तरह अब ये एक बंदा है 14 मई 2022 को इसने आईडी बनाई थी, ठीक है, मेरे इस रेफरल लिंक के थ्रू। इसने अपना यूजर नेम चौधरी 80 डाला था और इसने अपना नाम शोएब हसन डाला, ठीक है। ये शोएब भाई थे, इनको मैंने जो है ना ज्वाइन करवाया साइड पर। इसी तरीके से ये तमाम डेटा जो है ना मुझे शो हो रहा है। अब ये सारा डेटा वो डेटा है जिन लोगों ने पैकेज भी परचेज किया होता है और साथ जिन्होंने पैकेज नहीं भी परचेज किया होता तो वो भी लोग आपको शो होते हैं। मिसाल के तौर पर आप हैं, आपके पास एक बंदा आ जाता है, कहता है कि सर मैंने ज्वाइन करना है, आप कहते हैं ठीक है मैं लिंक भेज रहा हूँ, आपने अपनी आईडी बनानी है, आपने लिंक भेजा, ठीक है, आपने लिंक भेजा, उसने कहा मैंने आईडी बना ली। अब जब आप देखेंगे इधर माई रेफरल में आके कि आप लोग को शो होगा कि यार एक बंदे ने इधर आईडी बनाई है, ठीक है। जिस तरीके से मिसाल तौर पर मैंने शोएब को लिंक भेजा, शोएब ने कहा कि मैंने आईडी बना ली है, मैं यहाँ पर आया माई रेफरल में और मैंने चेक किया, हाँ वाकई में भाई शोएब ने आईडी बना ली है क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि किसी बंदे ने आईडी बनाई है नहीं बनाई, और फिर उसका यूजर नेम जो होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यूजर नेम चौधरी 80 जो यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे शो हो रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेटवर्क समरी। नेटवर्क समरी के अंदर आपकी जो मुकम्मल टीम होती है वो आप लोगों को शो होती है कि आपकी लेफ्ट साइड पे पहले नंबर पे लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे पेड का मतलब होता है कि हर वो बंदा जिसने पैकेज परचेज किया हुआ है। पेड लेफ्ट 264, पेड राइट 333, ठीक है, यानी कि राइट साइड पे 333 लोग और लेफ्ट साइड पे 264 लोग। इसी तरीके से बिजनेस वॉल्यूम आपका लेफ्ट साइड पे 0 है, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम मेरा राइट साइड पर 2806। इसी तरीके से रेफर लेफ्ट 11 और रेफर राइट 10। अभी जो यहाँ पर जो रेफर लेफ्ट और रेफर राइट शो हो रहे हैं ना, ठीक है, जो रेफर लेफ्ट 11 और रेफर राइट 10, ठीक है, ये मैं जूम करके दिखा दूं, ये जो 11 और 10 आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये रेफर लेफ्ट और रेफर राइट। अब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट साइड पर कितने वो डायरेक्ट मेंबर्स हैं जिन्होंने आपके लिंक के थ्रू पैकेज परचेज किया, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ब्राउज रैंक अचीव करने के लिए आपके 2 लोग राइट साइड पर, 2 लोग लेफ्ट साइड राइट और 2 लोग लेफ्ट साइड पर होना जरूरी है। तो वो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि भाई आपके राइट साइड पर कितने डायरेक्ट मेंबर हैं आपके लिंक के थ्रू, आपके लेफ्ट साइड पर कितने डायरेक्ट मेंबर हैं आपके लिंक के थ्रू, और वो मेंबर जिन्होंने पैकेज परचेज किया है। अब तकरीबन 80 लोगों को मैंने लिंक प्रोवाइड किया, जो कि मैंने आपको दिखाया कि आप देख सकते हैं कि इतने लोगों ने आईडी बनाई हुई है, ठीक है। अब 80 लोगों में से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 21 लोगों ने अपनी आईडी बनाई है और बाकी लोगों ने आईडी नहीं बनाई। तो ये ऐसा होता है हर बंदे के साथ होता है। लोग कहते हैं कि लोग आईडी तो बना लेते हैं पैकेज नहीं परचेज करते, तो ये हर बंदे के साथ होता है, ठीक है। आईडी मेरे साथ भी लोग बना लेते हैं लेकिन पैकेज नहीं परचेज करते। जैसा आपने देखा 80 लोगों ने आईडी बनाई है और पैकेज जो परचेज किया वो भी 21 लोगों ने, वो भी शायद मर के किया होगा मेरे ख्याल से। तो हमेशा सब्र के साथ काम किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को जो ट्रेनिंग होने वाली है वो बड़ी कमाल की होगी, ठीक है। उसके अंदर आपको तमाम चीजें मैं जो है ना क्लियर करने लगा हूँ, ठीक है, काम करने के आप लोगों को अच्छे से मेथड बताने लगा हूँ। अब ये मैंने इधर क्लिक किया मेन्यू पर, ठीक है, फिर उसके बाद डिपॉजिट नाउ पे मैंने क्लिक किया। इसमें अब जब भी आपने ऑर्डर लगाना हो ना, ठीक है, तो आप डिलीवरी चार्जेस के ऊपर क्लिक करके अपना ऑर्डर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट नाउ करेंगे, ये निंजा बैंक है, इसके अंदर जितने भी हमारे मिनी स्टॉकिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि इस बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट लगाते होते हैं। अब इसमें मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट क्या है कि 2 लाख से, 2 लाख से, यानी कि 2 लाख नहीं, ये बिल्कुल ये 2 लाख ही है, ठीक है। 2 लाख से लेके आप तक 20 लाख तक, 2 लाख से 20 लाख का आप लोग डिपॉजिट लगा सकते हैं, जो कि ये कौन लोग लगाते हैं, ये सिर्फ मिनी स्टॉकिस्ट लगाते हैं, ठीक है। जिनकी टीमें हजारों में होती हैं, सही है, जिनकी टीमें हजारों में होती है वो लोग क्या करते हैं कि 2 लाख से 20 लाख तक का डिपॉजिट लगाते हैं और वो पॉइंट्स कंपनी से एडवांस में ले लेते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे जो है ना पैकेजेस के जो पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई 3000 सेंड करता है तो हम 3000 के पॉइंट उसके यूजर नेम के ऊपर भिजवाते हैं। अगर कोई 7000 सेंड करता है तो हम 7000 के पॉइंट्स उसके यूजर नेम के ऊपर भिजवाते हैं और इस तरीके से उनको जो है ना ज्वाइन हो जाते हैं कंपनी में। और ये पॉइंट्स हम किन से लेते हैं, ये पॉइंट्स हम मिनी स्टॉकिस्ट से लेते हैं और ये पॉइंट आपको संडे वाले दिन मिलते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए कंपनी संडे वाले दिन ऑफ होती है, कंपनी काम नहीं कर रही होती, लेकिन फिर भी मिनी स्टॉकिस्ट काम कर रहे होते हैं, उनसे हमें पॉइंट मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास विड्रा ना हो, ठीक है, किसी भी पर्सन ने विड्रा लेना हो तो वो इधर आके बैंक और इजी पैसा के अंदर अपना विड्रा ले सकता है, ठीक है। इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। टाइम बहुत कम है तो इस वजह से टाइम वेबसाइट है तो मैं चंद एक चीज आपको बता रहा हूँ। आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस पड़ा हो, ठीक है, आप उसको यहाँ पर जो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी आप यूजर नेम डालेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि ये यूजर नेम है किसके। अब जैसे आप लोगों ने देखना है कि मैं अपने फादर का यूजर नेम डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने अपने अबू का यूजर नेम डाला है तो लिखा आगे कि ट्रांसफर टू कुर्बान, यानी कि मेरे अबू का नाम कुर्बान अली है, तो ये यहाँ पर शो हो गया। यूजर नेम से पता चलता है कि भाई ये यूजर नेम किस बंदे का है, ठीक है, नाम का पता चल जाता है, सही है।
تو یوزر نیم آپ ڈالیں گے اوپر, ٹھیک ہے, یوزر نیم آپ نے ڈالا, آپ نیچے ادھر جو ہے نا اماؤنٹ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے اپنا ادھر ای پی این ڈالتے ہیں, اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ٹرانسفر بیلنس کرتے ہیں, تو آپ کا بیلنس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے, فی الحال اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں رپورٹس اینڈ لاگس. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ جو ٹرانزیکشن لوگ ہے پہلے نمبر پہ, اس کے اندر آپ کو مکمل ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کیا کیا آپ نے کیا, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی ارننگ ایڈ ہوئی ہے, وہ ارننگ آپ نے جو ہے نا کس کو سینڈ کی ہے, آپ نے وڈرا لیا ہے تو کس طریقے سے لیا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کو یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بیلنس آپ نے کسی کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس بھیجا ہے, تو آپ یہاں پر آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعی میں اس بندے نے بیلنس آپ کو بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. تو یہ جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں بیلنس ایڈ ہوا ہے, مائنس ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیل لوگ آ جاتا ہے, آپ کوئی بھی ڈپازٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طریقے سے میں نے ڈپازٹ لگایا تھا اپنا 3.5 AD پروڈکٹ کا ڈپازٹ, تو یہ میرا ڈپازٹ کیا ہوا تھا, کمپلیٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ ڈیئر یوزر یور آرڈر ہیز بین اپروڈ, تو یہ میں نے منگوایا تھا, ٹھیک ہے. یہ مکمل ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جب بھی آپ پروڈکٹ آرڈر لگائے نا تو ایسی سلپ لگایا کریں ہمیشہ, ٹھیک ہے. اب یہ سلپ دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹائم کیا لکھا ہوا ہے, 4 دسمبر 2021, یعنی کہ میں نے دسمبر میں یہ اپنی جو ہے نا پروڈکٹ منگوائی تھی, ٹھیک ہے. اور تقریباً ابھی تو کافی ٹائم گزر چکا ہے, تو ابھی تک یہ سلپ یہاں پر سیو پڑی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر شو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ڈپازٹ لوگ میں جب آپ کو اپنا ڈپازٹ لگاتے ہیں, سیل لوگ میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کا وہ ڈپازٹ کینسل ہوا ہے یا کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ وڈرا لوگ, آپ نے کوئی بھی وڈرا لگایا, ٹھیک ہے, وہ وڈرا اب ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہاں پر آپ کو شو ہوتا ہے. جو کہ ڈپازٹ ادھر میں نے ڈیش بورڈ پہ آپ کو بتا دیا تھا. بائی لوگ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بائی لوگ کے اندر کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں اپنا پیکیج, تو وہ آپ کو شو ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے میرا پیکیج کون تھا 30 AD, یعنی کہ 3000 والا میرا پیکیج تھا, جو کہ میں نے پرچیز کیا تھا 3 مئی 2021 کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب کمپنی نے پروموشن لانچ کی, تو اس پروموشن کے اندر میں نے اپنا پیکیج 170 AD یعنی کہ 17000 والا پیکیج میں نے پرچیز کیا تھا. اور کب کیا تھا, 20 نومبر کو. نومبر میں کمپنی کی پروموشن آئی تھی, تو میں نے پیکیج اپنا 17000 روپے کا پرچیز کیا تھا, اور اسی پیکیج کی جو پروڈکٹ ہے وہ میں نے دسمبر کے منتھ میں منگوا لی تھی. اب فرسٹ کمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا, فرسٹ کمیشن ڈائریکٹ کمیشن, جو کہ آپ کو ڈیش بورڈ پر میں نے کلیئر کیا تھا. بونس 2 کمیشن یعنی کہ انڈائریکٹ کمیشن, ٹھیک ہے. آپ کا ٹیم ورک کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن سیکورٹی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپشن فی الحال ورکنگ نہیں کر رہا ٹھیک طریقے سے چلے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے, تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا بہت جلدی. اس کے علاوہ سپورٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سپورٹ آپشن پر جب آپ جاتے ہیں, آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے کسی بھی قسم کی, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, سپورٹ ٹکٹ کے تھرو آگے آپ اپنا سپورٹ ٹکٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. آج تک دیکھیں میں نے کون سے ٹکٹ جنریٹ کیے ہیں. 8 مہینے پہلے میں نے اپنا براؤز ریوارڈ منگوایا, ٹھیک ہے. ایڈٹ اکاؤنٹ ڈیٹیلز, میں نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ایڈٹ کی. میں نے اپنے ایزی پیسے کا اکاؤنٹ چینج کرنا تھا, تو وہ میں نے ادھر کمپنی کو میسج کیا, ٹھیک ہے. کیا میسج میں نے کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کمپنی کو السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر, پلیز میرا جیز کیش اور ایزی پیسے کا اکاؤنٹ اپڈیٹ کر دیں. مائی نیو ایزی پیسے اکاؤنٹ جیز کیش اینڈ ایزی پیسے نمبر از, یہ میں نے اکاؤنٹ نمبر ڈالا اور میں نے اکاؤنٹ ٹائٹل ڈال دیا. اور اوپر کمپنی کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ ڈیئر یوزر یور ریکویسٹ ٹو دا اکاؤنٹ ایڈٹ ہیز بین اپرووڈ, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ہر کوئی بھی مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ میں, تو وہ یہاں پر آ کے آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں. میری کے وائی سی کا پرابلم آ رہا تھا, تو یہ کے وائی سی کی میں نے یہاں پر کیا, ٹھیک ہے. میری کے وائی سی ٹھیک ہو گئی. پہلے میری جو کے وائی سی تھی وہ میرے بے فارم کے اوپر تھی, کیونکہ اس ٹائم پر میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا. پھر جب میرا آئی ڈی کارڈ بن گیا, تو پھر میں نے کمپنی کو کہا کہ سر میں نے اپنی جو ہے نا آئی ڈی کارڈ لگانا ہے, ٹھیک ہے, تو میں وہ کیسے کر سکتا ہوں. تو کمپنی نے پھر کیا کیا, میری جو کے وائی سی تھی اس کو کینسل کر دیا, اور کمپنی نے کہا کہ آپ اپنی آئی ڈی اپنی جو ہے نا کے وائی سی کو دوبارہ کمپلیٹ کریں. اب یہ جو اٹیچمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اٹیچمنٹ 1 اور اٹیچمنٹ 2, اس میں کیا لگا ہوا ہے, اس میں میری آئی ڈی کارڈ کی جو ہے نا پکچرز, وہ میں نے کہا کمپنی خود کر دے گی, لیکن کمپنی نے کہا کہ نہیں آپ خود کریں, ٹھیک ہے. کمپنی نے میری آئی ڈی کی وہ کینسل کی, صحیح ہے, میری کے وائی سی کینسل کی. میری کے وائی سی جیسی کینسل ہوئی تو میں نے دوبارہ کی, اور دوبارہ کرتے وقت میں نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی پکچرز لگا دی. اس کے علاوہ نمبر چینج, ٹھیک ہے, سلور ریوارڈ, میرا نمبر میں نے چینج کیا, میں نے نیو نمبر ڈالا, تو وہ میں نے نمبر چینج کروایا. یعنی کہ ہر چیز آپ چینج کروا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی, ٹھیک ہے, سوائے اپنے نام کے. پھر اس کے بعد یہ لیفٹ اسپانسر رائٹ اسپانسر, میں نے پتہ لگانا تھا کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ کتنے لوگ ہیں, رائٹ سائڈ پہ کتنے لوگ ہیں. اس کے لیے میں نے میسج کیا کمپنی کو, ایڈٹ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل. میرا بینک اکاؤنٹ جب بن گیا, ٹھیک ہے, 4 دن پہلے جب میرا بینک اکاؤنٹ بنا, تو وہ اس کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں نے ایڈٹ کروانی تھی, تو وہ میں نے بول دیا, ٹھیک ہے. ادھر میں نے کمپنی کو بولا, کمپنی نے ایڈ کر دیا. رائٹ لیفٹ اسپانسر دوبارہ میں نے 4 دن پہلے پوچھا. پھر اس کے بعد آئی ڈی ایشو, میری آئی ڈی میں ایک ایشو بن گیا تھا, تو وہ میں نے کمپنی سے ادھر ڈسکس کیا, ٹھیک ہے. سینئر سے میں نے نہیں پوچھا, لیکن میں نے ڈائریکٹلی کمپنی سے پوچھ لیا. اس طریقے سے منی اسٹاکسٹ, میں منی اسٹاکسٹ بننا چاہ رہا تھا, تو میں نے کمپنی کو منی اسٹاکسٹ کے لیے جو ہے نا میسج کیا کہ سر میں منی اسٹاکسٹ بننا چاہتا ہوں. تو وہاں پر مجھے رپلائی آیا, ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کال پر بات کریں. تو میں نے کال پر بات کی. اس کے علاوہ رائٹ لیفٹ اسپانسر دوبارہ 2 منتھ پہلے میں نے پوچھا, ٹھیک ہے. پھر دوبارہ میں نے 1 منتھ پہلے رائٹ لیفٹ اسپانسر پوچھے, صحیح ہے, کیونکہ وہ جوائننگ جب ہو رہی تھی ساتھ ساتھ, تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لیفٹ پہ کتنے لوگ ہیں, رائٹ پر کتنے لوگ ہیں, تو وہ پوچھا تھا. پھر میرا جب گولڈ رینک اچیو ہوا 1 منتھ پہلے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر میں نے کمپنی کو میسج کیا کہ سر کائنڈلی میرا جو گولڈ ریوارڈ ہے وہ آپ مجھے سینڈ کر دیں. تو یہ میں نے میسج کیا سر کو, اور یہ اوپر سے میسج آ گیا کہ ڈیئر یوزر یور ریوارڈ ہیز بین ٹرانسفرڈ. تو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو, آپ کے اکاؤنٹ میں سپورٹ ٹکٹ کے تھرو آپ جو ہے کر سکتے ہیں. سپورٹ ٹکٹ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے, اوپر سبز کلر میں لکھا ہوا ہے نیو ٹکٹ. نیو ٹکٹ پر آپ کلک کریں گے,
آپ ادھر نیم ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ای میل ڈالتے ہیں, سبجیکٹ ڈالتے ہیں, اور ادھر میسج جو بھی پرابلم ہو آپ کو ڈالتے ہیں اور جو ہے نا سمپل سینڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹائم بہت کم ہے تو میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد آ جاتی ہے پروفائل, ٹھیک ہے. پروفائل میں آپ جائیں گے تو یہ آپ پروفائل آپ کو شو ہوتی ہے. یہاں پر میرا نام, میرا یوزر نیم, میں کب جوائن ہوا تھا 3 مئی 2021 12:13 پر, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں, میرا موبائل, یہ میرا نام, میری ای میل, ٹھیک ہے, میرا موبائل نمبر, اور میں کہاں کا رہنے والا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں یہاں پر میری شو ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آ جاتا ہے ہماری کے وائی سی, ٹھیک ہے. تو یہ کے وائی سی آپ دیکھ سکتے ہیں, میری اپ ٹو ڈیٹ آئی ڈی کارڈ پکچرز نہیں شو ہوں گی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا نام اور یہ میرا یوزر نیم اور یہ سارا کچھ, اور یہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز, ایزی پیسہ کی اور جائز کیش کی ڈیٹیلز, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے لاگ ان ہسٹری. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کس ٹائم پر, کہاں پر اور کون لاگ ان کر رہا ہے, صحیح ہے. کیونکہ کچھ لوگوں میں پرائیویسی ہوتی ہے تو ان کا جو ہے نا پاسورڈ یوزر نیم کافی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ بھائی آپ کا اکاؤنٹ آپ کے علاوہ اور کون یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز شو ہو رہی ہوتی ہے. میرا اکاؤنٹ صرف میرے علاوہ کوئی یوز نہیں کرتا, کیونکہ ٹھیک ہے, کیونکہ میں اپنے اکاؤنٹ کو اچھے سے. اس کے بعد سے لاسٹ لاگ آؤٹ آ جاتا ہے, آپ لاگ آؤٹ کریں. تو یہ تھی ہماری مکمل ویب سائٹ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے کلیئر کر دیا, ٹھیک ہے. صرف 1-2 منٹ بچے ہیں, میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. تو جو ہے نا وش یو بیسٹ آف لک, اللہ حافظ. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو آج کی اس میٹنگ کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر کر دی ویب سائٹ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو جو ہے نا کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی کہیں پر بھی ویب سائٹ یوز کرتے وقت.